Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Vahur. Now, dear student, our current topic is structure of atom. Now, in last two video lecture, we have discussed discovery of electron, proton, and neutron. That is J.J. Thomson. Next one, Rutherford, and last one, James Chadwick. Then, what is number of protons? What is atomic mass number, isotope, isotone, isobar, how to calculate the isotone and how it is related to each other. All that points we have discussed in last two lecture. Now in today's lecture, actually we are going to discuss Niels Bohr's atomic model. Our today's lecture based on Niels Bohr's atomic model. Now why Niels Bohr discuss या purpose the atomic structure? First we will try to discuss that point, because we have studied first time Dalton discovered the atom. According to Dalton, the matter is made up of tiny, small, indivisible particle, and that is called as atom. Later on in 1897, J.J. Thomson discovered electron. Means according to J.J. Thomson, that atom consists of electron, means atom can be divided. उसके बाद में in 1911 Rutherford discovered nucleus. According to Rutherford theory, that atom consists of a massive, dense body, positive charge body located at the center of it, and that positive charge body is called as the nucleus, and around the nucleus electrons are revolved. ये किसने कहा था? Rutherford ने. Okay. Then Chadwick in 1932-1934, Chadwick proposed that in nucleus not only protons are there but also neutrons are also there. Means some uncharged body is situated at the center of nucleus, and that protons and neutrons collectively it is called as nucleons. Collectively it is called as a nucleons. Now all these points हम लोगों ने डिस्कस किए इन लास्ट टू वीडियो लेक्चर. हाउ प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड, हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड. जे थॉमसन ने क्या किया था? एक कैथोड रेज ट्यूब लिया था विच इज सेटअप या कनेक्टेड to electrode. One is your cathode, another one is anode, and that two electrodes are connected to the battery. वैक्यूम पंप यूज किया, दैट ट्यूब इज फिल्ड विथ अ गैस. ये सब पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर. हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल? Even we are having Rutherford, then why to study the Bohr's atomic model? हम ये लोग क्यों स्टडी करेंगे? Because of some drawbacks. कुछ लिमिटेशन थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, और वो किसने फाइंड आउट किया था? बोर्स ने. अब व्हाट वाज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया था? क्या एट द सेंटर ऑफ एटम अ डेंस पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज लोकेटेड. उसका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने उसने बताया था क्या एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व. अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब न्यूक्लियस के अतराफ में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने. ओके. नाउ निल्स बोर्स ने क्या किया? इन 1913 Niels Bohr raised one question, and he took the support of Max principle, Maxwell theory. उसने किसका सपोर्ट लिया था? मैक्सवेल थ्योरी का. और वो ड्रॉबैक बना रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का. पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मैक्सवेल थ्योरी. अब मैक्सवेल ने क्या बोला था पता है? व्हेन एनी चार्ज बॉडी इन अ मोशन, आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा. व्हेन एनी चार्ज बॉडी इन अ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी. व्हेन एनी चार्ज बॉडी in a motion under the influence of another charge body. अब under the influence of another charge body का मतलब क्या रहता है? जब भी एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में घूमेगा,
when one charged body in a motion under the influence of another charged body, that charged body will emit the radiation in the form of energy. जो बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के अतराफ में घूम रहा है वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द मैक्सवेल थ्योरी. ये मैक्सवेल की थ्योरी था. अब अगर आप लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि द एटम कंसिस्ट ऑफ positive charge body which is situated at the center of it, and that is called as a nucleus, and around the nucleus a electron नेगेटिव चार्ज बॉडी इज देयर. ये क्या हो गए आप लोगों के, ये हो गए इलेक्ट्रॉन. मतलब वन चार्ज बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है. And according to Maxwell theory, this charge body should emit the radiation. ये जो चार्ज बॉडी है इसने क्या इमिट्स करना चाहिए था, रेडिएशन. और कौन से फॉर्म में वो रेडिएशन इमिट्स करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होना चाहिए, इमिट्स होना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होना चाहिए, कम. अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही तो इलेक्ट्रॉन सेम पाथ में रिवॉल्व करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पर रिवॉल्व करेगा क्या, नो. वो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है. मीन्स हेयर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, धीरे 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 उसका पाथ चेंज होते जाएगा. ओके, उसका पाथ क्या होते जाएगा, चेंज. और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिर जाएगा, इन द न्यूक्लियस, एंड एटम विल कोलैप्स. मतलब एटम अनस्टेबल हो जाएगा. ये पॉइंट पकड़ा था बोर्स ने क्या बोला था, उसने मैक्सवेल थ्योरी का उसने सपोर्ट लिया था और बोला था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी व्हेन वन चार्ज बॉडी and in motion under the influence of another charge body will emit the radiation in the form of energy in atom. According to Rutherford, at the center nucleus is there. तो ये इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है. सो बोर्स ने बोला था कि मैक्सवेल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना चाहिए, रेडिएशन इमिट्स करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ such thing happen then electron will lose its path. और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके गिर जाएगा, इन द न्यूक्लियस, एंड एटम विल कोलैप्स. एटम कोलैप्स में एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. नाउ दिस मैक्सवेल थ्योरी रदरफोर्ड फेल्स टू एक्सप्लेन, टू सेटिस्फाइड. रदरफोर्ड ये सेटिस्फाइड नहीं कर सका कि भाई इलेक्ट्रॉन गिरेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन गिरेगा नहीं. रदरफोर्ड फेल्स टू एक्सप्लेन, टू सेटिस्फाइड द मैक्सवेल थ्योरी, एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. उसका वो एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक था. सेकेंड ड्रॉबैक आपको ये समझ में आ रहा है ना. फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड फेल्स टू सेटिस्फाइड द मैक्सवेल थ्योरी, एंड सेकेंड ड्रॉबैक था रदरफोर्ड fails to explain the distribution of electrons. उसने इतना बोला था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमेगा. जस्ट लाइक आप लोग अगर सोलार सिस्टम देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, सोलार सिस्टम. तो सोलार सिस्टम में क्या होता है कि आपका सन, उसके अराउंड में अर्थ, मून उसके अराउंड में घूमेगा, जो बड़ा है उसके अराउंड में छोटा प्लैनेट घूमेगा. ये किसने बोला था, रदरफोर्ड. बट ही फेल्स टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एंड दैट 2 पॉइंट वाज द फेल्यूर या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स. और ये किसने पॉइंट पिक किया था, नेल्स बोर्स ने. इसलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, व्हाई वी आर स्टडिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल. जबकि अपने पास में रदरफोर्ड का मॉडल था, फिर भी मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों डिस्कस करूंगा, बिकॉज देयर वाज सम ड्रॉबैक्स. दैट इज द लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बोर्स मॉडल. ओके, नेल्स बोर्स एटॉमिक मॉडल. नाउ इसके अपन पहले 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे. क्या ये जो नेल्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल था,
ये काय पर बेस्ड था, उसने कौन से बेस पर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। और उसके बाद इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल ट्राई टू कवर द पोस्टुलेट्स ऑफ नेल्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके कुछ पोस्टुलेट्स है रिलेटेड टू हाइड्रोजन, वो अपन पार्ट्स डिस्कस करेंगे। नाउ एक्चुअली नेल्स बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट। इसका जो एटॉमिक मॉडल था ये डिपेंड था दो कंसेप्ट पर। एक था आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, एक कंसेप्ट क्या हो गया था आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके, एंड सेकंड कंसेप्ट वाज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, ओके, रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। ये दो कंसेप्ट पर बोर्स का एटॉमिक मॉडल डिपेंड था। कौन से दो बेस पर डिपेंड था वो? वन इज योर डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड सेकंड क्या था आप लोगों का रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। इन डिटेल in today's video lecture we will try to cover this part, dual nature of light, or my next video lecture we will discuss spectrum of hydrogen and what was the postulates of Bohr's atomic model, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट मैं करूँ स्टार्ट। अपना पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला पार्ट अपन कवर कर रहे डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट के दो कैरेक्टर है, डुअल नेचर है मतलब लाइट एक्ट एज वेव एंड लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल्स। ये बोर्स का कहना था, लाइट एक्ट एज अ वेव्स एंड लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल्स। नाउ दिस टू पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस और इसी में अपन कवर करेंगे हाउ लाइट एक्ट एज अ वेव्स, फिर उसके कुछ लिमिटेशन थे जहां पर बोर्स फेल्स टू एक्सप्लेन सम कंसेप्ट। तो फिर मैक्सवेल आया था, उसका कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे हाउ लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल, दैट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं उसको, या मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ओके। नाउ पहला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके। पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन डुअल नेचर ऑफ लाइट। नाउ इन केस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट स्टूडेंट, आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट में व्हाट इज वेव्स, लाइट एक्ट एज अ वेव्स। डुअल नेचर में अपन क्या यहां स्टडी कर रहे हैं, लाइट एक्ट एज अ वेव्स, ओके। सबको मालूम है लाइट एक्ट एज अ वेव्स। इन डिटेल में स्टार्ट करता हूं व्हाट इज द मीन वेव्स। अब मैं वेव्स किसको बोलूंगा ना, अगर आप लोग देखेंगे वेव्स का एक्चुअल मीनिंग देखेंगे अपन तो द वे, वेव्स किसको बोलेंगे अपन, द वे थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये अपने कॉमन लैंग्वेज हो गई। व्हाट इज द वेव्स, द वे, WAY, द वे थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ओके। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही एटसेट्रा, एक्चुअली इसको अगर प्रॉपर वे से डिफाइन करेंगे अपन तो वेव्स का मतलब रहता, वेव्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाउ टू डिस्क्राइब द वेव्स, डिस्टर्बेंस, yes, it is the disturbance which travels, yes, disturbance which travels through medium, or it is called as space, through medium or it is called as space. So what is the waves? Waves are described as disturbance which travels through medium or space. And why this disturbance take place? To transfer, yes, to transfer energy from one location to another location, to transfer energy from one location to another location, one point to another point, and this is called as the waves, okay. So finally let me know what is waves. Waves are described as disturbance
which travels through medium or space to transfer energy from one location to another location, it is called as the waves. मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, साउंड वेव्स. साउंड वेव्स, नाउ आई एम टेलिंग हियर, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मेरी जो साउंड एनर्जी है, साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आप तक पहुँच रही है. बिकॉज ऑफ दैट प्रोपोगेशन, ये आप तक, ये ट्रैवल कर रही है. साउंड एनर्जी क्या कर रही है? ये ट्रैवल्स कर रही है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज द वेव्स. सिंपल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. आप लोग एक पानी ले लो, जस्ट टेक पानी इन पॉट. सपोज ये पॉट है, ये पॉट में पानी है, मैंने स्टोन लिया. ना स्टोन एट द हाइट, अब यहाँ पर स्टोन है. नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन. ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन. अब जैसे वो स्टोन को मैं पानी में फेंकूंगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. मतलब वो स्टोन जब पानी में जा रहा तो पानी में कौन सी एनर्जी आ रही? काइनेटिक एनर्जी. अब पानी स्टेबल था, जैसे आप उसमें पत्थर छोड़ेंगे, पानी लहरों के फॉर्म में आ जाएगा. That is called as the waves. The disturbance, that is called as the wave. The disturbance which travels through a medium. अब यहाँ मीडियम क्या है? वाटर है. अब यहाँ मीडियम क्या है? वाटर है. आपने पानी में पत्थर फेंका, बिकॉज ऑफ दैट वाटर वो लहरें आना शुरू हो गई. आप लोग एक काम करो, पत्थर लेके फ्लोर पर फेंको, फ्लोर पर आपको वेव्स दिखेंगे जस्ट लाइक अ वाटर? नो, बिकॉज वाटर एक्ट एज अ मीडियम एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर वहाँ वेव्स हो गया. वो वेव्स ट्रैवल्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रोफ. वो आगे अपन डिस्कस करेंगे. तो आपको समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस को बोलते हैं रिपल्स इन वाटर. वाटर में वेव्स बनना पत्थर फेंकने के बाद में. ओके, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. साउंड एनर्जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. दैट गिटार, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार. नाउ स्ट्रिंग, STING. स्ट्रिंग्स मीन्स वी कैन से वो गिटार के तार. आप जस्ट वो तार को हिलाओ, दैट स्ट्रिंग्स मतलब वो तार वाइब्रेट होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन एनर्जी विल प्रोड्यूस. दैट इज साउंड एनर्जी. आपको सुनाई देंगे. Okay, that is also called as the waves. So finally, Bohr's atomic model based on two concepts. One is your dual nature of light और second था उसका result of spectra. अपने स्टार्ट किए dual nature of light. अब dual nature of light का पहला पार्ट है light act as a waves. Okay, अब there are two types of waves. दो टाइप के waves रहते हैं. Now one is your mechanical waves. एक कंसेप्ट क्या रहता है आप लोगों का? मैकेनिकल वेव्स. एंड सेकेंड वन इज योर नॉन मैकेनिकल वेव्स. वन इज योर मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड क्या रहता है आप लोगों का? नॉन मैकेनिकल वेव्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन मैकेनिकल वेव्स. अब देखो, मैं मैकेनिकल वेव्स किसको बोलूंगा? मैंने जस्ट बिफोर 2 minutes आई हैव पुट 2 एग्जाम्पल्स. वन इज योर थ्रू वाटर इन, थ्रू स्टोन इन वाटर. ओके, पत्थर फेंको पानी में, दैट स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, आवर साउंड एनर्जी. ओके, नाउ मैकेनिकल वेव्स मतलब वी कैन से द वेव्स हु नीड या विच नीड मीडियम और स्पेस टू ट्रैवल्स. मैकेनिकल एनर्जी अपन किसको बोलेंगे? द वेव्स विच नीड मीडियम और स्पेस टू ट्रैवल्स, टू प्रोपोगेट. एंड सच वेव्स आर कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक पॉट में वाटर ले, जस्ट थ्रू अ स्टोन. नाउ स्टोन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है. अब जैसे वो स्टोन पानी में जाएगा, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वाटर में लहरें बनेंगी. दैट लहरें इट इज कॉल्ड एज द वेव्स. सो दैट वाटर इट इज द मीडियम. वो वाटर तक करके वहां पर लहरें बनी. सो दैट वाटर इज कॉल्ड एज द मीडियम और दैट वाटर इज कॉल्ड एज द स्पेस. तो ऐसा waves which required, which need a medium or space, that is called as a mechanical waves. ये waves को अपन क्या बोलेंगे? मैकेनिकल. जैसे आपका गिटार है, when you will touch the strings of guitar, अब वो गिटार के जब तार को टच करेंगे वाइब्रेशन होगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होंगी. सो दैट इज द मीडियम, दैट इज द सोर्स. मीडियम मतलब अपन उसको क्या बोलेंगे? सोर्स. नाउ इन वैक्यूम, अगर आप लोग वैक्यूम में देखेंगे वेयर प्रेशर इज जीरो, इन वैक्यूम साउंड एनर्जी इज जीरो. अब वैक्यूम में क्या हो जाता है? साउंड एनर्जी जीरो होती. वाई इन वैक्यूम साउंड एनर्जी इज जीरो? क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है कि द स्पीड ऑफ ऑल रेडिएशन
सेम। वैक्यूम में सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रहते हैं ना वो एक ही स्पीड से रन करते हैं। देयर इज नो मीडियम और देयर इज नो सोर्स, एंड दैट्स व्हाई इन वैक्यूम द साउंड एनर्जी इज जीरो। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैकेनिकल वेव्स अपन किसको बोलेंगे? व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स विच नीड मीडियम और स्पेस टू ट्रेवल्स टू प्रोपोगेट, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव। नाउ व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? अब अपन नॉन मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स विच डू नॉट नीड एनी मीडियम और स्पेस टू प्रोपोगेट और टू ट्रेवल्स, यानी ऐसे वेव्स जिनको कोई मीडियम या कोई सोर्स या कोई स्पेस की जरूरत नहीं रहती है टू प्रोपोगेट और टू ट्रेवल्स, एंड सच वेव्स आर कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। समझ में आ रहा? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड व्हाट इज द नॉन मैकेनिकल वेव्स? नाउ मैकेनिकल वेव्स मींस व्हिच नीड अ मीडियम, सोर्स और स्पेस टू प्रोपोगेट, टू ट्रेवल्स, and what is non-mechanical, which do not need a medium or source। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, now our sun radiation, सूरज की किरणें, सूरज की जो सन रेज है, सन रेज इट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम सन टू अर्थ। वो सूरज से, सन से कहां पर आ रही है? वो जमीन पर आ रही है विदाउट एनी मीडियम। उनके पास में कोई मीडियम नहीं रहता, कोई सोर्स नहीं रहता, एंड सन रेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। जो सन रेज रहते हैं वो काय के एग्जाम्पल रहते हैं? आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। नाउ स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक जिस पर बोर्स मॉडल डिपेंड्स था, दैट इज लाइट एक्ट एज द वेव्स। अब मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलूंगा? डिफरेंट कंसेप्ट्स आर देयर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? द रेडिएशन, all radiation which travels without any medium, without any space, any source, such radiations are called as electromagnetic radiation। और वो आज का अपना पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ऑल रेडिएशन विच ट्रेवल्स विदाउट एनी मीडियम और विदाउट एनी स्पेस, सच रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिखे होंगे, डेफिनेशन ऑफ वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन इज योर नॉन मैकेनिकल वेव्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक फ्रॉम डुअल नेचर ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट, लाइट एक्ट एज अ वेव्स। अब वेव्स मतलब मैं बोलूंगा रेडिएशन, रेज, रेडिएशन और रेज। पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन लाइट के डुअल नेचर का, दैट इज फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। नाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज कॉल्ड EMR। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? EMR। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जस्ट टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ऑल रेडिएशन विच डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल्स टू प्रोपोगेट, okay, such radiations are called as electromagnetic radiation. Now in case of electromagnetic radiation, that is light travels in the form of waves, light travels in the form of radiation। अपन डिस्कस करेंगे what are the characteristic या parameters of electromagnetic radiation। What is the characteristic या पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है EMR जिसको अपन बोल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहता है व्हाट इज वेवलेंथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है उसका? व्हाट इज वेवलेंथ। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज या पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पैरामीटर क्या आता है उसका? फ्रीक्वेंसी। नाउ थर्ड वन इज योर वेव नंबर। थर्ड वन इज
wave number. Fourth part is given, that is speed of waves. Okay, fourth part that we will discuss, that is speed of waves, and last part, that is what is amplitude. लास्ट पार्ट क्या आएगा आप लोगों का, व्हाट इज एम्पलीट्यूड. दिस पैरामीटर्स वी विल ट्राई टू डिस्कवर, वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट आर द पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब अपन क्या बोलते हैं कि लाइट प्रोपोगेट, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. लाइट कौन से फॉर्म में ट्रैवल्स कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. एक ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे. नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज टू कंपोनेंट्स. One is your electric field and second one is your magnetic field. Now see, this is two axes are there. Now suppose two axes are there. Now one is your x axis, second one is your y axis, and this one is your third axis, that is your z axis. Now suppose y axis it is electric field, z axis it is magnetic field, and x axis it is line of propagation. x axis क्या है आपका, line of propagation, जहां along this line waves क्या होंगी, travels, propagate होंगी. along this line waves are propagate or waves are travels, and that is called as your line of propagation. इसको अपन क्या बोलेंगे, this is called as line of propagation. Okay, now see, there are three axes, x, y and z. Now x axis, that is line of propagation. Y axis it is electric field, first component. Second component है z, it is the magnetic field. Now I am saying the waves, light travels in the form of radiation, in the form of waves. See, this is the light travels in the form of waves. See here, this is the light which travels in the form of waves. Now light जो travels करती है in the form of crest and trough. कौन से फॉर्म में ट्रेवल्स करती है लाइट, इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रोफ. ओके, नाउ सी, यहाँ ये उसका पॉइंट है, यहाँ से लाइट ट्रेवल्स कर रहे हैं. नाउ दिस इज योर क्रेस्ट, दिस वन इज योर ट्रोफ. नाउ दिस वन इज योर क्रेस्ट, दिस वन इज योर ट्रोफ. नाउ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स लाइट्स ट्रांसफर. ओके, लाइट ट्रांसफर. अब ये जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है, नाउ दिस लाइट प्रोपोगेट अलोंग परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. ये लाइट जो प्रोपोगेट कर रही है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है. एक्चुअली ऑल दिस थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, x, y एंड z. ये जो थ्री एक्सिस है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब वो 90 का एंगल बनाएंगे. परपेंडिकुलर में ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, 90 का एंगल. नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन along y axis या perpendicular to y axis. Now this is your crest and this one is your trough. ओके, और ये बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पर उसका पैरामीटर आया था, और फर्स्ट पॉइंट है वेवलेंथ. नाउ हाउ टू डिफाइन द वेवलेंथ, कैसा मैं डिफाइन करूंगा वेवलेंथ, द डिस्टेंस. वेवलेंथ क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट और ट्रोफ. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव, कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले दो क्रेस्ट या दो ट्रोफ. जैसे ये सपोज मेरा क्रेस्ट नंबर 1, दिस वन इज योर क्रेस्ट नंबर 2, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. So how to define the wavelength? The distance between two consecutive crest and two consecutive, एक के बाद एक, ये डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ नहीं बोलूंगा. एक के बाद एक जो क्रेस्ट आते हैं, ये दिस टू क्रेस्ट, दिस टू क्रेस्ट, दिस टू ट्रफ. नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ. Now actually wavelength it is represented by the symbol lambda. वेवलेंथ के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है लैम्डा, LAMBEDA. ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा या वेवलेंथ. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा और इट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ. तो होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज वेवलेंथ,
How to define the wavelength? The distance between two consecutive crests or two consecutive trough. This distance is called as wavelength, and it is represented by the symbol lambda. This is a symbol of wavelength lambda. Now, what is the SI unit? What is the SI unit of lambda? अब अगर मैं wavelength का SI यूनिट देखूंगा, वेवलेंथ का अगर मैं SI यूनिट देखूंगा वेवलेंथ का, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ का अगर मुझे SI यूनिट लिखना है तो एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस है. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. सो हियर द यूनिट ऑफ वेवलेंथ आल्सो मीटर. वेवलेंथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर. क्योंकि मैं बोल रहा हूं वेवलेंथ इज द डिस्टेंस between two consecutive crest and two consecutive trough, and that's why both are having the same unit, that is meter. अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स है डिस्टेंस के, या इसके अलावा भी कुछ यूनिट है आपके वेवलेंथ के. जैसे वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉन. ए पर डिग्री रहेगा. वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर nm, picometer pm, femtometer fm. Here f stand for, f काय के लिए यहाँ रहेगा? femto. f stand for femto. Now a is angstrom, nm means nanometer, pm means picometer, and fm means femtometer. अब 1 angstrom is equal to how many meter? वो क्वेश्चन आया. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 पिकोमीटर, पीएम प्राइम मिनिस्टर ने रहता है, ये मोदी जी नहीं है. पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? ये क्वेश्चन शुरू हो गया. सो ट्राई टू रिमेंबर, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, एंड 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. और ये याद रखो. यस, याद रहेगा. 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12, एंड 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. ओके. वैसा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉन? अब नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन का आप लोग रिलेशन देखेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन. ये नैनोमीटर है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन. ये एक कंसेप्ट भी याद रखो. ओके. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ. पहले ये नोट डाउन करो. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम. नोट डाउन दिस पॉइंट, क्यों मैं इसको रफ कर रहा हूं. नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके. नाउ आवर पॉइंट सेकेंड वन, फ्रीक्वेंसी. ओके. अपना सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. ओके. आवर सेकेंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी. किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेव्स. ओके. ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ वेव्स. ये अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स? स्टूडेंट्स, इन जनरल अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब रहता है कि 1 सेकंड में कितना काम हो रहा. अगर मैं अपने जनरल वे में डिस्कस करूंगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब रहेगा कि 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है. जैसे मैं आपको बोलता हूं फैन, सीलिंग फैन. अब फैन का काम रहता है घूमने का, रोटेशन का. सो इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रोटेशन टेक प्लेस? 1 सेकेंड में फैन कितने रोटेशन ले रहा? दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैन. बारिश आ रही है. ओके. 1 सेकेंड में कितने वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं? दैट इज द फ्रीक्वेंसी. कोई भी काम 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स.
व्हाट वी आर स्टडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. अब वेव्स का रोल रहता है टू प्रोपगेट, टू ट्रैवल्स. वेव्स का रोल क्या रहता है? टू प्रोपगेट या टू ट्रैवल्स. तो जब मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एक्सप्लेन करूंगा तो हाउ टू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोपगेट, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल्स, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल्स थ्रू वन पॉइंट. जैसे मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट से वेव्स निकल रहे हैं, ये पॉइंट से लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल्स इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल्स थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने वेव्स दिए हुए पॉइंट से ट्रैवल्स कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. द नंबर ऑफ वेव्स travels through given point in 1 second, it is called as a frequency of waves. जल्दी जल्दी लिख के रखो. number of waves travels in 1 second, okay, travels from a given point in 1 second, it is called as frequency of waves. And frequency of waves, it is represented by nu, nu, nu उसका सिंबल ऐसा आता है. ये V नहीं है, V नहीं है, ये क्या हो गया आपका न्यू, एन यू न्यू, एन यू न्यू. एंड द फ्रीक्वेंसी इट इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यू, और उसका जो यूनिट आता है वो आता है हर्ट्स, Hz या पर सेकेंड. इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट हो जाता है हर्ट्स या पर सेकेंड. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. याद रहेगा. नाउ कुछ और फ्रीक्वेंसीज के अपन कुछ क्वांटिटीज अपन डिस्कस करेंगे. जैसे हेयर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता मेगाहर्ट्ज, कैपिटल M. फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता किलोहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता स्मॉल m, मिलीहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट आता है दैट इज माइक्रोहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का ये भी क्या यूनिट आ जाता है? माइक्रोहर्ट्ज. नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. कैपिटल M रहा तो मेगाहर्ट्ज एंड स्मॉल m रहा तो मिलीहर्ट्ज. नाउ मेगाहर्ट्ज का मतलब रहता है 10⁻⁶ हर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो जाता है? 10⁻⁶ हर्ट्ज. किलोहर्ट्ज का मतलब रहता है 10⁻³ हर्ट्ज. ओके. मिलीहर्ट्ज का मतलब रहता है 10⁻⁻³ हर्ट्ज, 10⁻⁻³ हर्ट्ज. एंड माइक्रोहर्ट्ज का मतलब रहता है 10⁻⁻⁶ हर्ट्ज. ओके. तो Hz हर्ट्ज इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड म्यू, nu, न्यू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो लैम्बडा सिंबल हो गया वेवलेंथ का, और न्यू किसका सिंबल हो गया है? फ्रीक्वेंसी का. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वेव नंबर. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं व्हाट इज वेव नंबर. अब देखो ये वेव नंबर एक्चुअली कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं. वेव नंबर का मतलब रहता है द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट का मतलब रहता है 1 लेंथ. एक लेंथ में कितने वेव्स है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. एंड वेव नंबर इट इज रिप्रेजेंट बाय न्यू बार, NU बार. अब न्यू बार बोले तो इसका ऐसा सिंबल आता है. नाउ न्यू बार इज द सिंबल ऑफ वेव नंबर. न्यू बार किसका सिंबल हो गया है? वेव नंबर. एक्चुअली दिस वेव नंबर दैट इज न्यू बार इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ये जो न्यू बार रहता है वो क्या रहता है? न्यू बार इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. अब बोलने के लिए उसको बोलते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ आर कॉल्ड एज वेव नंबर. एक्चुअली वेव नंबर क्या रहता है? ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल रहता है. Wave number is the reciprocal of wavelength. So these are the first 3 characteristic, or we can say parameters. Characteristic, या इसको अपन क्या बोलेंगे? Parameters of electromagnetic radiation. Light travels in the form of radiation. Light travels in the form of waves. That is called as your electromagnetic radiation. Now इसमें मैं next parameter शुरू करता हूँ. Okay, just I am going to rough this part. ये मैं diagram rough कर रहा हूँ. Now my next concept is speed of waves.
मेरा कंसेप्ट नंबर 4 है, व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव्स। अब अगर स्पीड ऑफ वेव्स देखूंगा मैं, नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स। कैसा फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये प्रोडक्ट को बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव्स। अब देखो, जनरली स्पीड के लिए सिंबल यूज करते वी। स्पीड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? वी। मैं यहां स्पीड ऑफ वेव्स के लिए सिंबल यूज कर रहा हूं सी। मीन्स हेयर बाय लुकिंग टू दिस वी कैन राइट द फॉर्मूला C इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं C इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। नाउ लैम्बडा इज द वेवलेंथ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज C? एक्चुअली C रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या रहता है? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन मैं यहां C यूज कर रहा हूं स्पीड ऑफ वेव्स के लिए। स्पीड ऑफ वेव्स के लिए क्या सिंबल आना चाहिए था? V, बट आई एम टेकिंग हियर C, क्योंकि आपने स्टडी किए है, थॉमसन ने बोला है, रदरफोर्ड ने बोला है, चैडविक ने बोला है। ये लोगों का कंसेप्ट क्या था? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चैडविक? ये लोगों का कंसेप्ट क्या था? ये लोगों ने बोले थे कि द रेडिएशन, जो रेज निकलती है, दैट रेज आर ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड, और उनकी जो स्पीड रहती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के रफ्तार से वो ट्रेवल्स करती है। उनकी स्पीड कितनी रहती है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसलिए मैं यहां पर स्पीड ऑफ वेव्स के लिए सिंबल क्या यूज कर रहा हूं? C। एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर C इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये अपन V की जगह C क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दैट वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये फॉर्मूले को आप लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ C इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू, और वी कैन राइट हियर न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। यस, वी कैन राइट हियर। ये आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे अपन स्टडी करने वाले हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें ये काम आएगा। आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूलेज यूज किया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए। आप लोग याद रखो C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू, एंड यहां पर C क्या है? स्पीड ऑफ वेव्स। लैम्बडा क्या हो गया यहाँ पर? वेवलेंथ। न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो इस पर से मैं लिख सकता फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। और वी कैन राइट आपके प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी न्यूमेरिकल देगा उसके हिसाब से अपन यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते। एक और मैं पॉइंट लिख सकता, वो क्या आएगा मेरा? न्यू बाय C इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। यस, ये पॉइंट को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लाओ। न्यू by C is equal to 1 by lambda. Now this is all about the speed of waves. तो student, what is speed of waves? अब speed of waves क्या आएगा? It is the product of wavelength into frequency. एंड इसका फॉर्मूला क्या आता है? C इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू। अब मैं स्पीड ऑफ वेव्स के लिए C क्यों ले रहा है? बिकॉज दैट वेव्स ट्रेवल्स विथ speed equal to velocity of light. Now these are the first 4 parameters. और मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, what is the mean amplitude and what is the mean intensity of radiation. अपन बोल रहे हैं यहाँ पर waves, radiation, rays, उनकी intensity क्या रहती है? Okay, so pause your video and note down all this point. मैं इसको रफ कर रहा हूँ, right fast, जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स लिखो। ओके, मैं ये पॉइंट को रफ कर रहा हूँ, स्पेशली राइट दिस पॉइंट, write all this unit conversions, all values of wavelength, frequency, speed of waves. Okay, so अपना जो पॉइंट है मैं एक मरतबा और आपको याद दिला देता हूँ कि अपन जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, that is first characteristic, first nature of waves, that is light travels in the form of waves. लाइट जो ट्रैवल्स कर रही है वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल्स कर रही है? प्रोपोगेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, अब जो लाइट ट्रैवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसका अपन यहाँ एक प्लॉट देखे थे, दैट इज y एक्सिस, दिस वन इज योर
x axis, this one is your z axis. Now this is the line of propagation, जहाँ जो जिसके थ्रू वो प्रोपोगेट कर रही है, और ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. दिस इज क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, crest and so on. Okay, and now this distance is called as a wavelength. ये distance को अपन क्या बोलते हैं? wavelength. Now student, our next concept is, अपना next concept है amplitude. जो मैं next point start कर रहा हूँ वो अपन क्या बोल रहे हैं? amplitude. amplitude का मतलब रहता है height of crest. amplitude का मतलब क्या रहेगा? height of crest. ये जो crest की height है, now this height it is called as the amplitude. एक simple part है, सबको मालूम है. What is amplitude? amplitude मैं किसको बोलूंगा? height of crest, that is called as amplitude. And now next concept, that is intensity of radiation. मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. नाउ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. तो स्टूडेंट, ये अपना पहला पार्ट कवर हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Light act as a waves. Light propagate, travels in the form of waves. मतलब रेडिएशन रेस के फॉर्म में वो प्रोपोगेट हो रही है, ट्रैवल्स हो रही है, और उसके कुछ अपन ने पैरामीटर्स देखे हैं, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ओके, वेव नंबर, स्पीड ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. बट हियर आई होप you are getting my point. What is electromagnetic radiation? आपको ये point I think समझ में आया होगा. I hope आपको ये point समझ में आया होगा. Now our next concept, okay, that is light act as particles. Light काय का रोल प्ले कर रहा है? Light act as a particles. अब मुझे एक बात बोलो, जब बोर्स ने ये point डिस्कस किया, क्या लाइट, जब उसने कुछ रिजल्ट्स आए थे, उस वक्त बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स पर डिस्कशन शुरू था, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए थे. बोर्स ने कुछ एटॉमिक मॉडल्स का उसने रिजल्ट्स का कंक्लूजन लिया था और उस पर उसने अपना रिसर्च किया था. ओके, अब जब अपने को ये मालूम पड़ गया था कि लाइट जो रहती है, रेडिएशन प्रोपोगेट होते हैं, ओके, इन द फॉर्म, लाइट ट्रैवल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, waves, or in the form of radiation. So why there is need to study light act as a particles? Because of there are some drawbacks. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो थ्योरी थी, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. जैसे बोर्स फेल्स टू एक्सप्लेन, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी. इसके फेल्यूर्स क्या आते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के, ये जो EMR थ्योरी अपन ने डिस्कस किए, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, इसका पहला ड्रॉबैक क्या था? बोर्स फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रेडिएशन इमिट्स फ्रॉम हॉट बॉडी. अब वो पॉइंट्स में पकड़ रहा हूं अभी. हॉट बॉडी का मतलब रहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. हॉट बॉडी का मतलब यहां क्या रहेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, तो पहला ड्रॉबैक क्या था EMR थ्योरी का? बोर्स फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, ओके, नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन इमिट्स, जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी. अब यहाँ हॉट बॉडी का मतलब क्या रहेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी आप फिजिक्स में स्टडी करेंगे. क्या व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी का मतलब रहता है एन आइडियल बॉडी. एक ब्लैक बॉडी रहती है, एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज. आप कौन से भी वेवलेंथ की लाइट उस पर फेंक दो, कौन से भी नैनोमीटर, वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर, हर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, उसके वैल्यूज अलग रहती है. कोई भी लाइट उस पर फेंको आप लोग, वो बॉडी क्या करती, वो लाइट को, वो फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करती और इमिट्स करती.
an ideal body which absorbs and emits all frequencies and the radiation emits from such body is called as black body radiation. और ये जो बॉडी में से रेडिएशन निकलती है that is called as your black body radiation. तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, आप लोग लिखेंगे what is black body radiation? An ideal body which absorb and emits all frequencies. पूरे अलग अलग वेवलेंथ के जितने लाइट्स आप उस पर फेंकेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उतनों को क्या करेंगे, वो इमिट्स करेंगे. और ऐसे बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब वो ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं अपने को. हॉट बॉडी का मतलब क्या रहेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ये जो रेडिएशन निकल रहे थे उनका नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. आगे पढ़ेंगे अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में. ओके, नाउ व्हाट वाज द सेकंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसने एक्सप्लेन नहीं किया था. क्या एक्सप्लेन नहीं किया था उसने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेटर ऑन प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. अब बाद में फिर ये आइंस्टाइन ने प्रूफ किया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई बॉडी में से निकलती है तो वो रेडिएशन एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर जाके टकराती है, इंसिडेंट होती है. ओके, और वो उसमें प्लेट में एक एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराती हो. अब वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर कभी आप लोग डिस्कस करेंगे. ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो डिस्कस किया था, प्रपोज किया था. नाउ हियर दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ इसका जो थर्ड ड्रॉबैक रहता ये थ्योरी का, कि कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी. कुड नॉट एक्सप्लेन द थर्ड ड्रॉबैक क्या था उसका? कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी. ये आपको नेक्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में रहेगा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, अपना लेक्चर लेंदी हो रहा है. ओके, कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विथ टेम्परेचर. अब देखो एक्चुअली जो ये हीट कैपेसिटी रहती है ना, ये टेम्परेचर फैक्टर है. हीट कैपेसिटी क्या है? टेम्परेचर फैक्टर. अब टेम्परेचर फैक्टर इसका मतलब होता है जैसे आप लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे हीट कैपेसिटी चेंज होगी. एंड दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं उसने एक्सप्लेन किया था? हीट कैपेसिटी ऑफ वेरिएशन मतलब चेंज होना, हीट कैपेसिटी का चेंज होना अलॉन्ग विथ द टेम्परेचर. ओके, एंड फोर्थ उसका ड्रॉबैक था कुड नॉट एक्सप्लेन द spectral line of hydrogen. Could not explain the spectrum या spectral line of hydrogen. अपन ने पहले स्टडी किए क्या? बोर्स मॉडल पर्पज या बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट. one is your dual nature of light and second the result of spectra. ओके, एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट में दो पॉइंट थे. वन इज योर लाइट एक्ट एज अ वेव्स, वो अपने आज के पूरे पॉइंट्स में डिस्कस किए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या डिस्कस किया अपन ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक्स ऑफ EMR थ्योरी, Maxwell Planck in 1900 put forth a new concept. और ये ड्रॉबैक की वजह से प्लैंक्स ने क्या किया था? 1900 में एक न्यू थ्योरी पुट फोर्थ किया था, न्यू थ्योरी डिस्कवर्ड किया था उसने, एंड दैट इज कॉल्ड एज, वो थ्योरी को बोलते हैं अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अब व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी मैं आपको बताता हूँ. तो अपना अभी जो वीडियो लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है आप लोगों का? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. यस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, मैक्सवेल ने 1900 में ये थ्योरी को डिस्कवर किया था. किसने ये थ्योरी को डिस्कस किया था? थ्योरी को मैक्सवेल. ओके, प्लैंक्स. ओके, इन 1900. अब व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? अब आप लोग अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखेंगे, व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स.
ये थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी ट्रैवल्स कर रही है, अपने पहले देखे कि एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब ये प्लैंक्स ने क्या बोला था, 1900 में प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज किया था और पुट फोर्थ किया था। एंड प्लैंक्स ने क्या बोला था कि एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, यानी जो सूरज से जो एनर्जी आ रही, सन एनर्जी, आपकी जो लाइट ट्रैवल्स कर रही है, लाइट एनर्जी जो ट्रैवल्स कर रही है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करती है, इट फ्लो डिसकंटिन्यूअसली, मतलब वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल्स करती है। जैसे ये सूरज की किरणें हैं, तो ये जो सूरज की किरणें हैं, लाइट है, ये ऐसे स्मॉल पैकेट्स में ट्रैवल्स करती है। इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट एंड दिस वन स्मॉल पैकेट इज कॉल्ड एज, ये स्मॉल पैकेट को बोलते हैं क्वांटम। ये स्मॉल पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटम। एंड दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज अ क्वांटम थ्योरी। सो व्हाट इज द क्वांटम थ्योरी, क्या लिखेंगे आप लोग, क्वांटम थ्योरी इन केस ऑफ क्वांटम थ्योरी या अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट travels in the form of small packets called as a quantum and bunch of packet is called as quanta. ओके, एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग जब सन रेस को देखते हैं तो वहाँ तो हमको कहीं पैकेट्स दिखते नहीं है। अगर ये मैं ट्यूबलाइट की बात करूँगा, ऑन करो ये ट्यूबलाइट को, तो वो तो वहाँ मुझे कहीं पैकेट्स दिख नहीं रहे। एक्चुअली 1 सेकेंड में ये जो पैकेट्स इतनी स्पीड से ट्रैवल्स करते हैं, 1 सेकेंड में ये जो क्वांटम जिसको बोल रहे हैं अपन, पैकेट्स बोल रहे हैं, 1 सेकेंड में 1 × 10⁻23 पैकेट्स क्वांटम ट्रैवल्स करते हैं। अब 1 × 10⁻23 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद कितने जीरो आ रहे, वो क्वांटिटी कहाँ जा रही, मिलियंस में क्वांटिटी जा रही है। अब वो इतनी उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है कि मुझे वो पार्टिकल्स दिखते नहीं, मुझे वो पैकेट्स दिखते नहीं है। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये थ्योरी को अपन क्या बोलेंगे, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, अगर देखो आपकी, अगर समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं बात करूँगा, लाइट एनर्जी, लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर ये कंटिन्यूअसली रन करती, कंटिन्यूअसली मतलब लाइक दिस, ये इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर ये कंटिन्यूअसली रन करती तो आज क्या होता पता है, अपन इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हैं, अपना जो लाइट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है थ्रू अ वायर्स, पोल्स रहते हैं, खंबे रहते हैं, और खंबे पर वायर डाले हुए रहते हैं। अगर वो लाइट कंटिन्यूअसली रन करती, सपोज मैं कोई वायर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, वो पानी जो बारिश का पानी है वो वायर से टकरा के मेरे ऊपर आता, तो उसके साथ में करंट भी आता था। अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करती तो, ट्रैवल्स करती तो। लेकिन यहाँ होता क्या कि ये जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, एनर्जी लाइट एनर्जी, ये कैसे डिसकंटिन्यूअसली ट्रैवल्स करती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। एंड लाइट एनर्जी का जो एक पैकेट रहता है, एनर्जी ऑफ लाइट, द क्वांटम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटोन। यस, PHOTONE, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोन। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी क्वांटम पैकेट्स, इट इज कॉल्ड एज, ये पैकेट्स के लिए मैं क्या वर्ड यूज करने वाला हूं, फोटोन। और एक फोटोन, ये हो गया मेरा फोटोन, ये हो गया मेरा फोटोन, ये हो गया मेरा फोटोन। और एक फोटोन प्लैंक्स के हिसाब से एक फोटोन की एनर्जी कितनी रहती है मालूम है, E = h nu, and that is your Planck's quantum theory. E = h nu. The energy of one photon is h nu, where E is the energy, nu is the frequency, and here h is Planck's constant. यहां पर h क्या हो गया आपका, h is a Planck's constant. याद रहेगा, what is your h? h is a Planck's constant. ओके, और इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, दैट इज h = 6.62 इंटू 10⁻34 जूल्स प्रोडक्ट सेकेंड, जूल्स इंटू सेकेंड, जूल सेकेंड बोलते हैं उसको। ओके, तो व्हाट इज h? h क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, एंड वैल्यू ऑफ h क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻34।
okay, and this is called as your particle nature of light. Light travels in the form of small packets. That small packets are called as quantum, and light के एक क्वांटम को बोलते हैं फोटॉन, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी रहती है? E is equal to h nu, where E is the energy of photon, nu is the frequency, and h is called as a Planck's constant. h को मैं क्या बोलूंगा? Planck's constant. Okay, now this is all about the first part, dual nature of light. Light act as waves. Electromagnetic radiation अपन ने डिस्कस करे, उसके पैरामीटर डिस्कस किए, एंड लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल्स. तो ये प्लैंक्स ने 1900 में थ्योरी पुट किया था, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दैट इज लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और एक पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटम, और लाइट के एक क्वांटम एक पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन, और उसका एनर्जी कितना रहता है? इज इक्वल टू एच न्यू. अब देखो आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये फॉर्मूले को जस्ट रीअरेंज करता हूं. आप लोगों ने अब भी स्टडी किया था क्या? स्पीड ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या आया था? c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू. आया था कि नहीं? स्पीड ऑफ वेव्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. और रीअरेंज दिस फॉर्मूला. अब जैसे इसको मैं रीअरेंज करूंगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा. ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा. पुट दिस वैल्यू हियर, सो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? hc बाय लैम्बडा. प्रॉब्लम्स के लिए याद रखो, आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए. नाउ E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन इस पर से अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे जो आपको इंट्रेंस एग्जाम में काम आते हैं. एंड देन वी विल डिस्कस स्पेक्ट्रम. जो ये थ्योरी थी, जो एक्सपेरिमेंट था आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का, उसका सेकेंड पार्ट बाकी है. दैट इज स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन, एंड देन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल वी विल डिस्कस. ओके, सो नाउ होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका पैरामीटर, एंड व्हाट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. नाउ पॉज योर वीडियो, नोट डाउन ऑल पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे. थैंक यू.